Today, August 15th, our Mary Mother School has two equally important celebrations. The Feast of Assumption of Mother Mary, our Heavenly Patron, and the independence of our Bharat Mata. So, wish you all the blessings of the day. Both these celebrations remind us of the freedom from the darkness of sin and freedom from the oppression. The former is a spiritual event, while the latter is a political one. These two celebrations bring to our mind two greatest personalities who are known for their sacrifices, Mother Mary and Mahatma Gandhi. Mary's self-sacrifice and obedience to the will of God made possible the salvation of the whole human race. Mahatma Gandhi's self-sacrifice and love for the nation opened the door and made possible the independence of our nation. They had to confront a lot of difficulties and hardships. One day, a little girl in a village asked her father, "How far can you see?" And he said, "Maybe if it is a very clear day, I can see 2 or 3 kilometers. If I climb up on the roof of the house, I can see 8 or 10 kilometers. Little girl said, "That's all?" Father replied, "Well, how far can you see?" And she said, "If it is a very clear night, I can climb up on the roof of the house. I can see right up to the stars." The celebration of the Assumption of Mother Mary invites us to gaze up to the stars. It calls us to dream, to imagine, to hope, and to believe that God can do great things for us. As we celebrate Independence Day, we reflect also on freedom. Freedom does not mean just doing what we like or not doing what we don't like. Freedom means choosing the good for ourselves and for others. We choose to work for peace, progress, and justice. We opt to be the builders of harmony and unity. At this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and for the nations. Let us ask the intercession of Mother Mary and let God protect us and guide us always. Thank you. Respected principal, teachers, and my dear friends, very good morning. I'm Jane. I'm from UKG. Wish you all happy Independence Day. We got freedom from British on 1947 August 15. So every year we celebrate this day as Independence Day. I salute all the freedom fighters for their effort. Jai Hind. Thank you. Hi friends, today we are going to talk about national symbols of India. Let's see the national symbols. National emblem. Four-headed lion is our national emblem. Not the flag. Tilanga. That is tricolor. It are of the flag. It has three colors and Ashoka Chakra in middle. National flower. Lotus is the national flower of India. National fruit. Mango is the national fruit of India. National animal. Tiger is the national animal of India. National bird. Peacock is our national bird. National currency. Is the national currency of India. National
of India. National song. Vande Mataram is our national song. National anthem. Jana Mana is our national anthem. National river. Ganga river is the national river of India. National reptile. King Cobra is the national reptile of India. National vegetable. Pumpkin is the national vegetable of India. National tree. Banyan tree is the national tree of India. National heritage animal. Elephant is our national heritage animal. Dear friends, these are the national symbols of India. It reflects Indian culture and beliefs and also the positive attributes. Jai Hind. लाल किले के आसपास में आजादी का मेला सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते पूरी लौंड में बच्चे बूढ़े चने मुड़मुड़े गाते सभी कहते आज के दिन आजाद हुआ था देश आज के दिन ही अंग्रेजों का राज हुआ था शेष। आज मैं आरसी प्रसाद सिंह का राष्ट्रगीत नाम थोड़ा आशा को सुनाना चाहती हूँ। सारे जीव को पतित कलाने वाला जो ध्रुतारा है भारत भू ने जन्म दिया है सौभाग्य हमारा है धूप गुली है गुली हवा है सोरंगों की एक दवा है चंदन की खुशबू से भीगा भीगा अंजल सारा है जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर इसमें जीना भी प्यारा है इसमें मरना भी प्यारा है चाहे आंधी शोर मचाए चाहे बिजली आंख दिखाए हम न झुकेंगे यही हमारा नारा है। आज मैं इधर श्री रोहित शर्मा एमपी की एक लघु कथा प्रस्तुत करना जा रही हूँ। मेरी कहानी की शीर्षक है स्वतंत्रता। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। महानगर का एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार। अरे महरी, कल तुम सारा दिन हमारे यहाँ काम कर लेना। मुझे कल इंडिपेंडेंस डे की कई कार्यक्रमों में जाना है। पर मेम साहब, पर क्या? मेम साहब, मुझे भी बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस देखने के लिए उनके स्कूल में जाना है। मैं तो कल की छुट्टी मांगने वाली थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो तुम्हारे आना जरूरी है। मुझे कई जगह में स्पीच देनी है। कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना तुम आना ही मत। मैं किसी और महरी के प्रबंध कर लूंगी। महरी बेमसी में हाँ पर चलती। मेम साहब का इंडिपेंडेंस डे जरूरी है। हमारे स्वतंत्रता दिवस का क्या है? महरी ने सोचा, नौकरी छोड़कर आज खुद को स्वतंत्रता कर ले। परंतु उसके बिन बाप के बच्चे, बूढ़े सास ससुर और घर के गुजरा कैसे चलेगा? मजबूरियों ने फिर उसके गले में गुलामी का फंदा कस दिया था। अगले दिन 15 अगस्त को वह समय से पहले मालकिन के घर आ पहुंचे थे और बच्चों को समझ दिया था कि स्वतंत्रता दिवस अगले साल जरूर देखेंगे। मैम साहब भाषण दे रही थी। बच्चे हमारा देश का भविष्य है। आज हमारे देश का स्वतंत्रता की वर्ष करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महरी बर्तन साफ करते करते केबल टीवी पर अपने मेम साहब का भाषण सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि
बीम सब बच्चों को आजादी के बारे में तो बता रही है, लेकिन अपनी जिंदगी में तो ये लागू नहीं कर पाए। मुझे आशा है कि सबको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य, योग शिक्षकों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन हम अपने प्यारे भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज का दिन हम हमारे भूमि के प्रति प्रेम की भावना करते हुए जय भारत माता के नारे लगा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं यह स्वतंत्रता कठिन है। उन सभी के पीछे दशकों का बलिदान और संघर्ष है। जिस भूमि पर हम सांस लेते हैं वह महापुरुषों का संघर्षों का उपहार है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे ने किया और अपने देश के लिए शहीद हुए। इसके बाद लाल बाल पाल ने हिंसा की लड़ाई की। भगत सिंह, जब 26 साल के भगत सिंह को फांसी मिलने वाली थी, उसका चेहरे पर इतना सा भी डर नहीं था, बल्कि फांसी के सामने खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद करते हुए फांसी को झूम के इन्होंने फांसी स्वीकार किया और अपने देश के लिए शहीद हुए। हम नेताजी और गांधी जी के सभी संघर्षों को कैसे भूल सकते हैं। गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बड़ा पाठ पढ़ाया था। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करता हूँ। आजादी के बाद भारत खुशी और शांति का देश बन गया है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आज हम कोविड महामारी की चपेट में हैं, फिर भी हर भारतीय इस दिन को एक मन से मनाते हैं। इस महामारी को खत्म करने के साथ आज हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश विज्ञान, खेती, क्रीड़ा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, पर आज भी हमारा देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। चलिए आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पर प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले